Hi students, welcome again to the class of political science. And in the last class, we were studying about this Independent Election Commission to prove that free and fair elections are necessary for the country, and for that Independent Election Commission plays a very important role for that one. And I've started this topic of Independent Election Commission, and in that one so many things I've told you. Last thing which I've told you in this Independent Election Commission, that is about the function of the Election Commission, that I told you. Now during the now further part, during the last year's Election Commission of India has emerged as an independent authority. It means that this body is using its power to conduct the election in a fair manner. वो ये body जो है अपनी power को use कर रही है to conduct the election in a fair manner, and this body has acted in impartial and unbiased manner. Impartial मतलब निष्पक्ष, किसी का पक्ष नहीं ले रही है. Unbiased मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं कर रही है. और in this way they have done the work during the last years in such a manner, in impartial and unbiased manner. They have done such a work that to protect the sanctity sanctity of the Constitution. Constitution की holiness को, sanctity मतलब holiness, उसकी पवित्रता को protect करने के लिए they have done their work. Election Commission have done their work in impartial and unbiased manners, and whatever record we are having of the Election Commission till now, that shows one knowledge we get from this one thing come to our mind, and that has been proved by the Election Commission of India, that to have the improvement in the functioning of the institution, किसी institution के functioning में improvement के लिए there is not a requirement of legal or constitutional change. उसकी हमारे देश के संविधान और कानून में बदलाव करने की जरूरत नहीं है टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. और नाउ पीपल हैव एक्सेप्टेड, एंड नाउ इट इज एक्सेप्टेड वाइडली, सब लोग ये मान चुके हैं दैट इलेक्शन कमीशन इज नाउ मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव. एज ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा बेहतरीन है, assertive है, आक्रामक है, in comparison as it was 25 years ago. 25 साल पहले जितना नहीं थी उसके कंपैरिजन में आज it is more independent and more assertive. And this thing is not so, ये इसलिए नहीं है कि because powers of the election commission और प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैज इंक्रीज्ड, कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है. वो इसलिए ऐसा नहीं है. दिस थिंग इज सो बिकॉज नाउ इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड यूजिंग इट्स पावर मोर इफेक्टिवली. वो अपनी पावर का बहुत ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, विच आर ऑलरेडी गिवन टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो अपनी पावर को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इसको पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है. इसलिए पॉसिबल हुआ है कि नाउ इट इज मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव एज इट वॉज 25 years ago. And some examples they have told here ki how effectively it is working. Since 1952, first Lok Sabha election took place in our country at that time, and from that time onwards 17 Lok Sabha elections have taken place in our country. बुक के अंदर 16 लोकसभा इलेक्शन लिखा हुआ है.
they have not mentioned. अभी जो right now लोकसभा चल रही है from 2019 लोकसभा election, that is 17th लोकसभा election. This much election have taken place. और स्टेट असेंबली के तो so many elections, विधानसभा के बहुत सारे चुनाव गए हैं. So many by elections have taken place. By election, you know, उपचुनाव, अगर कोई सीट वैकेंट हो जाती है तो उसको फुलफिल के लिए वापस से अगेन इलेक्शन जो कराए जाते हैं, तो दैट इज बाय इलेक्शन. सो मेनी स्टेट इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड बाय दिस बॉडी. बाय इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड बाय दिस बॉडी, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड दिस बॉडी हैज फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज. बहुत सारी मुश्किलों का इसका सामना उसने किया. देन ऑल्सो दे हैव परफॉर्म वेरी वेल. जैसे एग्जाम्पल, दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज. हिंसाग्रस्त, आतंकवादग्रस्त जो इलाके थे वहां पर उसको इलेक्शन कराने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा. इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, Assam state of India, and in Punjab also. But they conducted elections effectively in a free and fair manner. Then one more problem the Election Commission faced, that was during the 1991 when the ex-Prime Minister Rajiv Gandhi, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ex Prime Minister of India Rajiv Gandhi was assassinated, उनकी हत्या कर दी गई थी. And that was the time, at that time election process was going on, and in the midway में election process को रुकना पड़ा था. And election commission has postponed the election during that time. उस समय उनको उस हालातों में देश के अंदर हालात खराब हुए थे, तो कंट्री ने उस दौरान इलेक्शन कमीशन हैज पोस्टपोन द इलेक्शंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम. ये भी एक डिफिकल्ट टाइम उनको फेस करना पड़ा था. उसके बाद 2002 में वन मोर डिफिकल्ट क्रिटिकल सिचुएशन was faced by the Election Commission of India. That was in 2002 Gujarat Assembly was dissolved. गुजरात असेंबली को डिसॉल्व भंग कर दिया गया था, एंड अगेन इलेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड. बट व्हाट इलेक्शन कमीशन हैज फाउंड, इलेक्शन कमीशन ने क्या पाया, दैट इन द स्टेट देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस. मतलब जैसा ऐसा कभी, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ, वैसे हालात, बहुत ही बुरे वायलेंस वाले हालात वहां पर थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टेट बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था एट दैट टाइम इन 2002. सो इन दैट सिचुएशन इलेक्शन कमीशन has postponed the elections. Election Commission has postponed the election process for few months. उन्होंने कुछ महीनों के लिए elections को जो है postpone करवा दिया. और like that इंडिया के, और ये जो डिसीजन था election commission का to postpone the elections in Gujarat due to violence, that was supported by the Supreme Court also. In this one, what we have studied till now, that this body, independent election commission, has worked very nicely to make the election system of India free and fair. And after that, now next topic, electoral reforms. In the electoral reforms का मतलब होता है चुनाव में सुधार. So no system in the world, no election is perfect one. कोई भी election perfect नहीं होता. वहाँ कोई ना कोई flaw होंगे. Some limitations will be there in the actual जो process होता है election के अंदर. उसके अंदर there are some problems, there are some limitations, and there are some flaws in that one. Or in a democratic system, so what we have to do, we have to keep on searching some mechanism. हमको कोई mechanism की तलाश में हमेशा रहना चाहिए democratic system के अंदर, to have the free and fair elections in our country. And now as we have accepted sub universal adult franchise
suffrage system, right to vote, right to contest for everyone. हर किसी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है. This thing we have accepted, and we have got established independent election commission of India for the conduction of election in our country, and like that India has tried to conduct its election in free and fair manner. भारत में, और during the whatever experience we are having from the last 70 years, जितने इलेक्शन कमीशन का जो काम हमने देखा है फ्रॉम द लास्ट 70 years से, उससे जो एक्सपीरियंस हमको हुआ है, दैट हैज गिवन द राइट्स टू मेक सजेशन. उसके वजह से बहुत सारे सजेशन आए टू इम्प्रूव द इलेक्टरल सिस्टम ऑफ इंडिया. भारत के इलेक्टरल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सुझाव आए हैं. इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनी स्कॉलर्स, और बहुत सारे विद्वान लोगों ने दे हैव सजेस्टेड मैनी रिफॉर्म्स for the proper conduct of the electoral system in our country. कुछ suggestion जो है, some of the suggestions have come to do the changes in the constitution of our country also. उसमें भी कुछ आया जो आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा है, तो उसके लिए भी आया. Now some of the electoral reforms which have been suggested here, that is number one, अभी तक हमारी कंट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के अंदर वी फॉलो FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. फर्स्ट सजेशन जो आया उसके अंदर, दैट वाज दैट वी शुड गो फॉर द, इंस्टेड ऑफ FPTP वी शुड गो फॉर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों? बिकॉज आपको जब आर सिस्टम पढ़ाया था, यू माइट हैव come to know that PR system allows the number of seat to a political party according to its share of votes. उसको जितने वोट मिलेंगे उसी के हिसाब से उसको सीटें मिलेगी पॉलिटिकल पार्टी को. अपना क्या नाम है, इन द लोकसभा एंड इन द विधानसभा. जबकि FPT सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है. वहां पर वोट से ज्यादा भी सीटें आ सकती है. उसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट वाज द ड्रॉबैक. तो पीपल हैव सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. सेकंड सजेशन जो प्रपोजल आया फॉर द इलेक्टरल रिफॉर्म, दैट इज 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज, इन द पार्लियामेंट एंड इन द असेंबली इलेक्शंस. ये एक सजेशन आया. उसके बाद वन मोर सजेशन हैज कम दैट देयर शुड बी कंट्रोल ऑन द रोल ऑफ मनी इन द पॉलिटिक्स. पैसों का जो रोल देखने को मिला है पॉलिटिक्स के अंदर, वो कम से उसको रोकना है, उसको कंट्रोल करना है. और जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, दे मिस यूज दैट मनी to win the election. So what suggestion has come that we should control this role of money, and in election there should be some separate fund to spend in the election campaign. Election campaign में एक अलग से फंड बनाना चाहिए, उसी से पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए फॉर द एक्सपेंडिचर. उन्होंने बोला कि दिस इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी should be paid by the government through a separate fund. एक अलग से फंड बना दो ताकि जिनके पास ज्यादा पैसा वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. वन मोर सजेशन, क्रिमिनल केसेस कैंडिडेट, जो ऐसे कैंडिडेट हैं हु आर हैविंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, दे शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन. उनका अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो उनको इलेक्शन से रोक दिया जाना चाहिए. इफ any of the candidate is having his case running in the court, अगर उसने कोर्ट में अपील लगा रखी है अपने केस के लिए कि मैं सही हूं, आप गलत आरोप लगा रहे हो, मतलब if any appeal is also running in pending in the court, then also that candidate should be barred from the election.
Plus, in the election, you might have seen and you know that candidates use caste and religious appeals to get the vote. There should be a complete ban on the use of the caste and religious appeals. One more suggestion has come that there should be some law, कुछ कानून बनाने चाहिए to regulate the functioning of the political parties. Political parties के functioning को control में करने के लिए there should be some rules. And ये जो rules हम बनाएंगे, they should ensure that this political parties should work in a transparent manner and in a democratic manner. ट्रांसपेरेंट मतलब उसके अंदर क्या काम हो रहा है आपको दिखाई देना चाहिए, पता लगना चाहिए हर किसी को, और वो डेमोक्रेटिक मैनर में काम हो रहा हो. इसके लिए कुछ रूल्स बनाने की जरूरत है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नोट डाउन दिस वन, देन फर्दर आई विल कंटिन्यू. Whatever reforms I have told you for the election process in our country, these are some suggestions. वो कुछ suggestions हैं, but there is no consensus on this suggestion. इन सुझावों पर आम सहमति नहीं है, सब लोग उसको सहमत नहीं है उसके ऊपर. But even अगर consent हो जाए, if the consent, अगर उन सब बातों पे सहमति हो भी जाए, then also there would be some limits to what the laws and formal provisions can do. तब भी कुछ कानून और जो provisions हैं हमारे कंट्री के अंदर, उसको लेकर कुछ सीमाएं जो हैं वो हैं, उनको देखना पड़ेगा. मतलब अगर कंसेंट हो भी जाए, then also there would be some limits to what the laws and the formal constitutional provisions can do. तो हमारे देश के जो कानून है, प्रोविजंस हैं, वो उसके तहत हमको क्या करना, उसकी कुछ लिमिटेशन आ सकती है. सो टू मेक द इलेक्शंस फ्री एंड फेयर, तो इनको पॉसिबल बनाने के लिए इफ द कैंडिडेट्स एंड इफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इफ द क्या बोलते हैं आपका दोज पीपल who are involved in the election process, if they are they follow the rules, which are made for the election, तो that can तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन अगर आपको पॉसिबल बनाना है, तो कैंडिडेट्स, political parties and those people who are involved in this election process, they are agree to follow the system system of democratic competition. वो उसको सिस्टम को जैसा बनाया उसको फॉलो करने के लिए एग्री हैं. ये जो लीगल रिफॉर्म्स अभी राइट नाउ हमारे देश में बताए गए, उनके अलावा भी देयर आर two more ways by which you can have the expectations fulfillment of the people through the elections, and you can have the fulfillment of democratic aspirations of the people through the election. Number one is people should be vigilant. लोगों को बहुत vigilant का मतलब होता है लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए. उसके अलावा they should have the very active participation in the political activities. लेकिन ordinary people, how much they will participate in this election process regularly, उसके ऊपर भी कुछ limitations होगा. कुछ वो उतना नहीं करते हैं, उसके ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी. हर एक आम आदमी उतनी एक्टिव वे में रेगुलर बेसिस पर इन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. So second situation to make this elections more free and fair, that there is a necessity to develop some political institutions and voluntary organizations
to check all these things, and ये जो political institutions और voluntary organizations हम बनाएंगे, they should be active as watchdog for ensuring free and fair elections. Watchdog मतलब वो उसके ऊपर पूरी नजर रखेंगे. पहले तो हमको उनको डेवलप करना है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, फिर इनको एक्टिव बना के रखना है टू एक्ट एज अ वॉचडॉग फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. वो उसके गार्जियन के तौर पर काम करेंगे, उसके ऊपर फ्री और फेयर इलेक्शन के ऊपर पूरी नजर रखेंगे, और तब जाकर वी कैन हैव दिस थ्रू सम अदर वेज अदर देन लीगल. कानूनी सुधारों के अलावा कुछ और तरीकों से वी कैन हैव द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन आवर country. Now, conclusion. Throughout the chapter, whatever you have read about the election systems in our country, what conclusion can you take out? In those countries where we are following the representative democratic system, in those countries, election and the representative character of the elections, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स वाला थ्योरी लेके चलते हैं, और इलेक्शन जो होता है दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. वो ये दोनों चीजें, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्शन, प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर मेकिंग द डेमोक्रेसी इफेक्टिव एंड ट्रस्टवर्थी. वो डेमोक्रेसी को इफेक्टिव और विश्वसनीय, ट्रस्टवर्थी बनाने में, इफेक्टिव मतलब प्रभावकारी और ट्रस्टवर्थी मतलब होता है विश्वसनीय में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. एंड सक्सेस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी मेजर्ड बाय मेनी फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर से मेजर कर सकते हैं. जैसे इन इंडिया वोटर्स हैव गॉट अ राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर कंट्री, एंड ये मतलब वन आवर सिस्टम, हमारा सिस्टम इसको अलाउ करता है. आवर वोटर्स, ये जो इस पूरे चैप्टर से ये कंक्लूजन निकलता है, एंड वोटर्स हैव गॉट अ राइट, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट इन अ पीसफुल मैनर बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट गवर्नमेंट. देन इन इलेक्ट्रल सिस्टम से ये पता लगा that voters are taking a very keen interest in the election process. They are doing the participation in the election process. In our country, number of candidates and the voters, number of candidates and the parties are increasing in the election process to contest. वो बढ़ रहा है. नंबर 3, ये जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, सिस्टम है, दैट प्रूव्ड अकोमोडेटिव, वो सबको स्थान देता है, एंड दैट प्रूव्ड इंक्लूसिव, सबको शामिल करके आगे बढ़ता है, सबको शामिल करके सब चलता है. और सोशल कंपोजिशन जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स का देखने को मिला इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इट इज चेंजिंग. Now we are having representatives from the different sections of the society. अलग-अलग social groups से इसके अंदर representatives देखने को मिल रहे हैं. Though representation of the women in the legislative bodies as the legislators have not increased so much. वो इतना ज़्यादा अभी नहीं बढ़ा है. Conclusion I'm talking about. And फोर्थ वन, इलेक्शन आउटकम जो देखने को मिले हैं, आउटकम मतलब नतीजे. इलेक्शन आउटकम विच वी हैव सीन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, दे डज नॉट रिफ्लेक्ट इलेक्टरल माल प्रैक्टिसेस एंड रिगिंग. मतलब जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो इस बात को साबित नहीं करते हैं कि वो रिगिंग और माल प्रैक्टिसेस, इलेक्टरल माल प्रैक्टिसेस मतलब चुनाव में कुछ गलत करना, और रिगिंग मतलब अनफेयर, हेरा फेरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वोट्स, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं. इलेक्शन आउटकम जो हमारे देश में देखने को मिला है, इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, वो दे आर नॉट शोइंग दैट रिजल्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिगिंग एंड इलेक्टरल माल प्रैक्टिसेस. बहुत सारी अटेम्प्ट्स दो कंट्री के अंदर रिगिंग के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं. जैसे कि यू माइट हैव हर्ड अबाउट द वायलेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन
and the genuine name, जो सही नाम है वोटर्स का, that is not appearing the voters list, intimidation, धमकी, इंटिमिडेशन मतलब किसी को धमकी देना, ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है इलेक्शन के टाइम। बट ये सब जो इलेक्टोरल मार्क प्रैक्टिसेस एंड रिगिंग के जो केस हैं, दे हैव नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट को प्रभावित नहीं किया है। एंड फाइनली the conclusion which you can take out that this election system क्या बोलते हैं आपको, has become a part of our country, and no one can imagine a government that would disrespect the verdict of the people of the क्या बोलते हैं आपको, इलेक्शन। वर्डिक्ट का मतलब होता है जनादेश, जनता का आदेश। ऐसा हमारे देश के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर सकता है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो जनता के आदेश को, इलेक्शन से जो आया उसको नहीं मानेगी, डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी। नोबडी कैन इमेजिन अ सिचुएशन इन आवर कंट्री अ गवर्नमेंट कैन फॉर्म विदाउट हेल्डिंग द इलेक्शन। बिना इलेक्शन के गवर्नमेंट बन जाएगी, ऐसी कोई सिचुएशन को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली द रेगुलरिटी, जिस रेगुलर वे में हम इलेक्शन करवा रहे हैं लगातार, जैसे 5 साल पूरे हुए तो लोकसभा इलेक्शन वापस होंगे, और पीरियोडिकिटी मतलब 5 साल का जो टाइम पीरियड है उसको पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग बकायदा इलेक्शंस और रेगुलरली इलेक्शन करा रहे हैं। दैट हैज ब्रॉट अ फेम टू इन आवर कंट्री फॉर द डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। हमारे देश में इतना बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट होता है, उसको एक फेमस मिला है भारत को इस वे के अंदर। और लाइक दैट फ्रॉम दिस कंक्लूजन, all this conclusion you can say that from these factors you can say that election has brought a respect within the country and outside the country. Voters of India has now gained more confidence, हमारे voters को और ज़्यादा confidence मिला है, and the legitimacy of the election commission. Legitimacy का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, हिंदी वर्ड होता है वैधानिकता, कानून के अनुसार। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिजिटिमेसी है इलेक्शन कमीशन की, दैट हैज आल्सो इंक्रीज इन द आईज ऑफ द पीपल। हमारे इलेक्शन कमीशन का जो हमने जो बनाया है अकॉर्डिंग टू लॉ, उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। प्लस whatever decisions, basic decisions which were taken by the our constitution makers, that has proved correct by this electoral system. हमारे constitution makers ने जो basic decision लिए थे देश के लिए, that has been proved correct by this electoral system. And अगर हमारा election, if our election become more flawless, और अगर हमारा इलेक्शन और ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाता है, मतलब बिना गलती वाला और ज़्यादा अगर दोष रहित अगर हो जाता है, देन आवर वोटर्स एंड आवर सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी के त्यौहार में वो और ज़्यादा हमारे सिटीजन्स और वोटर्स जो हैं, दे कैन पार्टिसिपेट more effectively and can make this electoral system more meaningful. Thank you and have a nice day.